Hi. Where is your chashma? Where is your spec? So, a very humble good morning to all. Guys, today what I'll be doing is I'll be talking about how to write good answers. You see, in the course of our preparation, what we do is we forget the basics. And this is specifically for the people who are giving mains. You're giving mains this time? You are in foundation, right? Okay. You are giving mains, right? This time? Acha. So you are yes, expecting. So you see, what I'll be briefly doing is, कैसे चलता है? बोर्ड ही ऑन कर देता है ऐसे. Okay. ठीक. Briefly, I'll be talking about how to go about answer writing. To be very specific, mains answer writing. So you see, very basic, very we do write so many answers. I make you write so many answers, but how to write answers, that is the thing. You see, I'll start with the very basics. I'm assuming that you do not know anything about answer writing. Okay? Or I'll also take into consideration to the people who are writing OPSC mains this time. My focus should be and will be on what is the structuring, how to use the pattern, how to understand the keywords like discuss, elaborate, critically analyze, something like this, and how to from the very basics how to go about it. ठीक है भाई, एग्जाम में आपके पास 3 घंटे हैं. 3 घंटे में आपने कितने क्वेश्चन लिखने हैं? 20 questions. In your case, you have 20 markers and 10 markers. Before that, it was used to be 60 markers. Okay. So I'm assuming that you are understanding the pattern, and I will start with the very basics. By basic क्या है? What is the basic of the answer writing? The first thing is structuring the answer. We all know that, say any question is being asked to you, it has to be properly structured. What does structure mean? Structure क्या मतलब है? You have to have a proper introduction. You have to have a proper main body, and you have to have a conclusion. This is the basic thing we talked about. But what is the main body? How to write introduction? That is the thing. The second thing which is very important in this is, the first thing was structuring I was talking about. The second thing was spacing. Now, I have seen a lot of answers that there is no difference between first line and the second line, or the third line and the fourth line. वो लिखे जा रहा है, he is writing. You see, structuring, what is structuring? What is structure is this. So this is introduction, this is main body, and this is the conclusion. ये बहुत easy लगता है ना? अब क्या होता है, बच्चे का इंट्रोडक्शन लिखा, पता ही नहीं चल रहा है उसका मेन बॉडी कब स्टार्ट हो गया, पता ही नहीं चल रहा उसका कंक्लूजन कब स्टार्ट हो गया. वेरी बेसिक, सबको पता है ये चीज. बट आफ्टर यू राइट एन इंट्रोडक्शन, प्लीज गिव सम स्पेस. After you get into the main bodies, please make a subheading out of it. You see, and I'll show it to you with an example. You conclude, you give some space between the two. If you do not have space, draw a line.
Very simple. Second thing, spacing. मैंने आपको क्या बताया? I've seen a lot of copies and you see, and what are you writing for? You are writing for a person who is very senior, 60 years old, 50 years old. He's working with the government department, checking copies for so long. You are the person who is young, impatient to a larger extent. So you have to understand how to write a good answer. And what is a good answer? I'll show you two copies. The one copy is where there is a very quality answer, but the writing is not good. And the second copy is where the content is not that good, but the copy looks good. I'll give you another example. You go to market, you see a person standing in a shirt pant or a suit, or you see a person who is sitting in a knicker or a shorts or a t-shirt. What will you look at? Who will you look at? A person who is suited, booted, he will be respected more. I'm not saying Elon Musk like he's, or this क्या नाम है इनका जो Facebook का चेयरमैन है, Mark Zuckerberg, वो उनका अलग है. Everybody knows that he is Mark Zuckerberg. You understand what I'm trying to say? That brings me to the packaging. भाई आपका आंसर पहले देखते उसने रिजेक्ट कर दिया, फिर क्या हो गया? Your impression, the first impression you have has to be very, very good. It has to be very authentic. That's why I use the word when it comes to suit. Same goes with the answer also. So you have to, and you know, ये कोई भी आपको बता देगा, रोड पे चलता हुआ बता देगा कि अच्छा साफ लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे. But साफ लिखना क्या होता है भाई? What is a good writing? What is a good writing? That is, the first thing is structuring. I'll give you another example. Everybody knows about, you see, India's freedom struggle. I'll start with this. Suppose there is a question on Mahatma Gandhi. I'll come to the technicalities later. This is the question. Topic. The topic is Gandhi. So, in the introduction, what will you write? You'll write about some dates. कब पैदा हुए थे? 1869. At making sense? Born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat, Gandhi was considered as a, or is considered as a, father of the nation. You understand? Okay. Now, this is the introduction part. इसको रब कर दूं? The main body. Now, this is the tricky part, guys. Please look at it very carefully. The main body has several subparts. So, education in London, ठीक है? Then practice in South Africa. He went to South Africa, no? So this is one part of it, a subheading.
Then initial political career. So, a lot of you do not know that Gandhi stayed in South Africa for 22 years. It's a data. So, he went to South Africa for what? And he started his career as a freedom fighter in South Africa as a, you see, young lawyer. So, he fought for the rights of endangered laborers. Then you can write about his satyagraha, his this. Gandhi's return. Then you can say in 1915 he returned India. Then you can talk about political struggle or struggles in India. Then you can talk about Champaran Satyagraha, Kheda Satyagraha and others. You are understanding what I am trying to say? कहने का क्या मतलब है कि आपने मेन बॉडी को बहुत सारे सब पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और मैंने क्या किया है, उनको हाईलाइट किया है. हर पार्ट का सब पार्ट है. Every part has a sub part. You understand? And is it making sense? Is it not looking good? इसमें आप थोड़ा स्पेस बढ़ा दो क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुझे आपको छोटे में ज्यादा बताना है. So you have his education, political career initial, then his return, his political struggles in India. Then you can talk about the non-cooperation movement. Then you can talk about the civil disobedience movement. Then you can talk about Quit India movement. Guys, those of you who do not know these things, don't have to worry about it. I'll be taking history also, that is not a problem. Just for the people who are writing mains this time. What I am trying to do is, I am trying to give you a topic, the introduction, the main body, and the sub parts of that main body. Now, what is the problem with people? The biggest problem is structure. अब उन्होंने यहां पर लिखा अबाउट गांधी इन इंट्रोडक्शन, उसके साथ ही उन्होंने स्टार्टिंग कर दिया. ही वॉज इन अफ्रीका फॉर 22 years. His political career started in India. He did this. He did this. What is the difference between this and this? Visibility. भाई आपने डिवाइड कर दिया, आपने सिर्फ लिख दिया, आपने हाईलाइट किया. आप ऐसा भी कर दोगे तो हाईलाइट हो गया.
and I'm assuming in your OPSC you have this lines also drawn. So what you can do is, यहां से लिखना शुरू करो. You leave a space and then write from here. Is it visible? Is it highlighted? Is it structured? अब इसमें आपको स्पेस देना. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, कई बच्चे हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है और कई बच्चे हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है. उनको फायदा हो गया इसमें. If you give space, your writing is legible to the person who is checking it. Mind you, he has to check how many copies? 3000 copies. 3000 के कितने लोग हायर किए होंगे गवर्नमेंट ने? 50, 100. और पर बंदे को कितनी कॉपी चेक करनी पड़ती होगी? Everybody has to check at least 50 to 100 copies a day. If you are not writing good answers, or your writing is not making sense, and you have a copy which is the 40th or 50th or 100th copy, वो आपकी कॉपी चेक करेगा? वो कहेगा मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? आपको बनना है. He's just doing his work. I'm not saying he's not doing his job. All I'm saying is you have to make his work easier. आपको उसका काम आसान बनाना है. क्या करके? हर चीज को स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बाद बाय स्ट्रक्चर करके और सब हेडिंग लगा के. मैंने इस बात को कितने बार आपको समझाया है, समझाया नहीं समझाया, बट मैं फिर बता रहा हूं कि कोई भी टॉपिक हो, यू हैव टू गो अबाउट लाइक दिस. इफ यू नो इट then it's okay. If you do not know it, just practice it. Now here comes the role of practice. भाई प्रैक्टिस का क्या मतलब है? अब भाई जो आप बचपन में लिखते होगे, काउ हैज 4, मैंने बहुत सिंपल टॉपिक यूज किया है जो हर कोई जानता है. मे बी आपको ये नहीं पता हो कि 22 years ही स्टेड इन साउथ अफ्रीका, मे बी, बट ऑल आई एम सेइंग इज हाउ शुड वी राइट. यू अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी, कोई बता देगा इसको. अब इसी में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं. Issue of landslides in India. Discuss the problem of landslides in India. बताओ सर. हाँ, how much percent of area is prone to landslides in India? That brings me the importance of data. So you will start with a data, you will start with a quote, you will start with some statistics. मैंने गांधी बताया, बहुत सिंपल टॉपिक है. लैंडस्लाइड के काफी लोगों को नहीं पता हो कि एक नॉर्दर्न बेल्ट एंड पार्ट्स ऑफ southern India are prone to landslides. Then you can talk about guidelines of National Disaster Management Authority, NDMA. You know about this? SDMA. So you have issue of floods. So can it be issue of floods in Odisha? साइक्लोन्स. भाई सब में किसकी गाइडलाइन होगी? होगी नहीं होगी? सब में स्ट्रक्चर होगा, सब में डेटा होगा. मेरे कहने का मतलब ये है, कई लोगों को जो अभी नए मे बी नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन आई होप द पीपल हु विल राइट आंसर्स विल अंडरस्टैंड दिस, दैट इन एवरी
topic. This is a paper 3, disaster management paper 3. There will be ethics also. So all I'm saying is, after you start with the introduction, which is short, with a data, with a quote, then you come to the main point, where you can talk about certain guidelines. Why? Because you are just a student. You have to substantiate you. अपना view बोलने से पहले आपको data होना चाहिए आपके पास कि भाई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास facts हैं मेरी बात को prove करने के लिए. I have facts. I'm talking about facts. You understand? अब मैंने आपको मेन बॉडी के बारे में बताया. अब मेन बॉडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? मान लिया आपके पास स्पेस आपका वैसा वाला वो है, तो आप इसमें लाइनिंग कर सकते हैं, इसको स्पेस दे सकते हैं, बीच में स्पेस छोड़ दो ना भाई. आपने एक पॉइंट लिखा, यू रोट अ पॉइंट नंबर 1 और ए, you wrote about the political causes, say political causes of the partition. कब हुआ था इंडिया का पार्टीशन? 1947. So you can talk about the political causes 1, 2, 3, 4 लिख लिया. Cultural causes 1, 2, 3, 4. मेकिंग सेंस? अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप इसमें लिख दो कि सोशो कल्चर और रिलीजियस कल्चर. कल्चरल में आप रिलीजन को लिख सकते हो. पार्टीशन के कारण क्या थे? कल्चरल कॉजेस क्या थे? चलो पॉलिटिकल बता दो. व्हाट वर द पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया? सॉरी, they were issues of political representation, political demarcation. Yes. आपने एक एक वर्ड में पूरा टॉपिक कवर कर दिया. एंड इफ यू हाईलाइट दीज, will be looking better. You gave some space and you then wrote the cultural factors. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी है. उसके नीचे आप चाहे तो लिख सकते हैं. देखो कई टॉपर्स, कई लिखने वाले सेंटेंसेस में लिखते हैं, कई लोग इसको भी इलैबोरेट कर देते हैं. जैसे इसके आगे आप लिख लो थोड़े बहुत, इसके आगे आप लिख लो, बट स्पेसिंग करो. इट हैज टू बी स्पेशियस, इट हैज टू बी लेजिबल. भाई आपको अब मैंने इशू लिख दिया, देखो अब वो दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल चिपक रखा है. अब देखो इसमें भी मैं बताता हूं. ये लिख दिया मैंने, कल्चरल कॉजेज, डिवीजन ऑफ society into different religions, which caused divide among communities, ultimately led to division and partition of India. इसका क्या मतलब है? आप एक चीज को बहुत खींच रहे हो. आप जो बात एक लाइन में कह सकते थे या 2 लाइन में कह सकते थे, आप पूरा सेंटेंस लिख रहे हो. इसका मतलब है आपके पास कंटेंट कम है या आपको एक्सपीरियंस नहीं है. यू अंडरस्टैंड?
आपके पास कंटेंट कम है, आपके पास ये इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे भी लिख रहे हैं. You understand? When we are writing this, then we are covering more dimensions. What is dimension? Dimensions. They may be political aspect, they may be social aspect, there may be cultural aspect, there may be economic aspect, there will be psychological aspect. Yes, they will be environmental, sanitary, ethnic. So the list goes on and on. So you have to take into consideration different dimensions. Understood? Now, there are certain keywords which are asked in exam, like discuss, critically examine. उसको करेंगे, इवैल्यूएट को करेंगे. भाई जब हम डिस्कस लिखते हैं, डिस्कस द मेन कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, discuss the main quality of main reasons for inequality in India. So we have to take into consideration both positives and discuss the role of, yeah, but it's very funny. What is so funny? Why are you laughing? हमें बताओ, हम भी हंसेंगे यार. मैं काफी देर से देख रहा हूँ. बताइए बताइए. Yes, very good, very good. Yes. Then you'll write the positives. What was the positive of Gandhi in Indian freedom struggle? Yes. What else? Sir? He brought the freedom movement from classes to masses. भाई पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में काफी लोग थे, अलीट लोग थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? सारे किसान से लेके फार्मर्स, you see, tribals, women were brought to the Indian freedom struggle. So he bought, this was the positive thing. Second, mass politics. Then leadership. Third was non-violence. Fourth was a decentralization. भाई तमिलनाडु में जा रहे हैं, तमिल भाषा बोल दे रहे. Gujarat में जा रहे हैं, he was a Gujarati. Because for 22 years Gandhi had stayed in South Africa with Naaman Muslims, with Tamilians, because India के लोग वहां जाके क्या करते थे? मजदूरी करते थे. They were called indentured, गिरमितिया मजदूरिया, indentured laborers. गिरमितिया तो खैर यहाँ थे साउथ ईस्ट एशिया में. सो गांधी को पता था कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान नहीं है, बहुत सारे हिंदुस्तान है. कोई ओडिया बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई मलयाली बोल रहा है. तो he knew that this nation is, we cannot make a policy at Delhi and just implement it.
The policy has to be made for every nook and corner and differently. This is the positive. अब negative क्या था भाई? जो भगत सिंह को फांसी हटा सकते थे, he could have easily done. अगर वो सत्याग्रह कर देते तो टल जाती. Too much focus on idealism, like नेहरू. Idealism बताया था मैंने. भाई दंगे चल रहे हैं, आप दंगे कर. 1947 में जब हिंदुस्तान का आजादी होती तो हिंदुस्तान में दंगे हो रहे थे. And ultimately he was killed by Nathuram Godse because he had his view and Gandhi had his view. Extreme idealism. Yes. But you cannot write it, but yes. 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 वो prayers and petitions भी एक टाइम तक होता है ना, उसके बाद तो नहीं होता. क्यों सर, गलत कह रहा हूं? What else? नेगेटिव क्या हो सकता है? और यार बताओ यार, क्या हसमुख चैटर्जी यार भाई. अरे नहीं, मैं I'm just asking कि what do you think about this? You understand what I'm trying to say? So this is the positive and negative. This is first part of it. Then critically examine. Here you have to criticize the question. You have to criticize the question. इस पे कोई question बताओ. Exactly. Yes. Critically examine the impact of globalization on women. You can talk about caste. अब इसमें आपको क्रिटिकली एग्जामिन. चलो लेट्स स्टार्ट विद द विमेन. आपने इंट्रोडक्शन दिया, यू रोट एन इंट्रोडक्शन. Okay, then you have to criticize, critically examine. That means you have to criticize this argument. You have to write in against the argument, but make sure in the end you write a positive note. क्योंकि भाई आप क्या हो, आगे चल के PCS IAS ऑफिसर्स बनोगे तो आप ब्यूरोक्रेट हो. Your approach has to be very positive at the end, but not initially. अब इसमें क्या लिख सकते हैं हम? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ वुमेन पे? बताइए. यस, यू कैन राइट दैट ऑल्सो. कास्ट सिस्टम पे, कास्ट पे व्हाट कैन यू राइट? सॉरी. Yes, yes, and then yes. So you see, what all I'm trying to say is how to go about these keywords. How to go about these keywords. जब आपको क्रिटिकली एग्जामिन बोला है तो आपने कोशिश करनी की आपकी इनिशियल अप्रोच थोड़ा क्रिटिसाइज करने की हो. बाद में यू कैन राइट अ पॉजिटिव नोट दैट ओके, ग्लोबलाइजेशन इज डूइंग, इट्स अ लिबरेटिंग थिंग. अ वुमेन कैन वर्क in Bhubaneswar. A girl from a tribal belt or from outskirt of Bhubaneswar can work here. She can work from home also, so she can earn money. She can send this money to her parents. There will be equality. But at the same time there are issues with mother-in-law. There were issues with issues in society, है ना? तो ये हम लिख सकते हैं. Then the very simple point now is, the easiest point is, please. यार वो क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे जो थोड़ा सा जिसमें आप क्रिटिसाइज कर सको.
Yes, very good. हम्म 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 जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आई वाज अबाउट टू कम टू यू. आपने मुझसे कहा कि इलेबोरेट कर सकता हूं. अगर मुझे ज्यादा फैक्टर्स लिखने हैं, आई मेक अ बॉक्स. आई राइट इम्पैक्ट. इम्पैक्ट मैंने लिख दिया इसको. इम्पैक्ट ऑन मरीन, ऑन बायोडाइवर्सिटी. बताओ. ऑन हेल्थ, ऑन बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट एक ही चीज होगा. और on yes. So this is how you can go about it. अब इस पे क्या करोगे? आप एक रिपोर्ट दे दो. यू कैन टॉक अबाउट अ रिपोर्ट इसके साथ ही. ठीक है. यू कैन गिव अ डेटा. प्लास्टिक का डेब्रिस इतना ज्यादा है पैसिफिक में. यस, यू कैन टॉक अबाउट ओडिशा. यस, यू कैन डेटा यहां पर डाल सकते हो. तो इससे क्या हो गया? आपकी विजिबिलिटी बढ़ गई. बड़ी नहीं बड़ी. और दूसरी चीज क्या, आप डिमेंशंस कवर कर सकते हो बहुत ज्यादा. अगर आप बीच के पेज में, एक ही पेज में, या एक पेज को दो भागों में डिवाइड करके ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो. यू अंडरस्टैंड. और इसमें भी आप लिख सकते हो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, extraction of, you are putting so much of pressure on the resources of the country. So ये कर सकते हो. ओडिशा में आप ओडिशा के एग्जांपल डाल सकते हो कि गंजम कोस्ट में क्या हो रहा है, भितरकनिका में क्या हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं आपके जो एरिया में. so ये लिख सकते हैं. कैन वी कवर ऑल? इसमें तो कोई मतलब, अगर आपके पास बेसिक बेसिक बुक के पॉइंट्स हैं तो आप डाल सकते हो. उसको आप किससे ऐड कर सकते हो? द डेटा फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स. यस यस यस. आपकी रिपोर्ट देखो ना, IUCN की रिपोर्ट है, IPCC की रिपोर्ट है, IUCN की, UNEP. यू कैन पुट एनीवन. ये तो आप पढ़ते हो ना, किसी PMS में पढ़ोगे, या किसी कौन सी बुक है वो, यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज रेट डेटा बुक एंड ऑल. देन I was talking about elaborate. तो elaborate में जो दिया है उसी को एक्सप्लेन करना है.
आपके यहाँ एक पॉलिसी एक कालिया, ठीक है. सो यू कैन टाइप राइट द सब टॉपिक्स ऑफ गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वी कैन टॉक अबाउट लॉजिस्टिक्स. अब इसमें क्या होता है, कई आप इस कोचिंग का भी और कोचिंग का भी ले सकते हो मटेरियल, इन्फोग्राफिक्स में दिया रहता है. सो यू कैन टॉक अबाउट वेरियस इलेबोरेट ऑन वेरियस डिमेंशंस कि भाई ये पॉलिसी आपने पढ़ी होगी. दिस पॉलिसी इज अबाउट एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, पोर्ट्स को एयरपोर्ट से जोड़ना है, एयरपोर्ट को रोड से जोड़ना है, रोड को किससे जोड़ना है, तीनों को एक साथ कॉरिडोर बनाना है. हमें क्या करना है, इजीली वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट कोल्ड स्टोरेजेस, ताकि भाई यहाँ से हमारा माल जा रहा है कहाँ, साउथ ईस्ट एशिया, मच्छियाँ जा रही है, मछलियाँ जा रही हैं, तो इट हैज़ टू बी वेरी इफेक्टिव ना. उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, हमें अच्छे स्विफ्ट व्हीकल्स चाहिए. अगर स्पाइसेस आ रही है वहाँ से या ऑरेंजेस आ रहे हैं नागपुर से या महाराष्ट्र से उड़ीसा को, तो भाई एक बार बताओ कितना टाइम लगता है महाराष्ट्र से यहाँ आने में, 12 घंटे. अगर आप उसको 6 घंटे कर सको तो हाईवेज बनवाओ. ये है पीएम गति शक्ति. यू अंडरस्टैंड. तो इसको आप इंफोग्राफिक्स से दिखा सकते हो, है ना. भाई अब वैसे तो क्या करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं इंफोग्राफिक्स में, ऐसे करते हैं ना. कौन सी किताब में लिखा हो कि ऐसा नहीं कर सकते आप. ओपीएससी ने कोई नोटिफिकेशन निकाला है कि ऐसा लिख रखा है कि ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, बताओ. ऐसा तो कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो कैसे कर सकते हैं, समझा सकते हैं ऐसे. अब इसमें क्या होगा, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो ये छुप गया ना आपका. यू आर फेचिंग, यू आर गेटिंग गुड मार्क्स. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. There was a question. Okay, so I'll again talk about a question, then we can talk about these things. इसमें ऐसा क्वेश्चन आया है 21 में. क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, मैं इसको थोड़ा ट्वीक कर रखा है. क्वेश्चन है, वर ओपीएससी का ही क्वेश्चन है, वर द डिस्टर्बेंसेस ऑफ 1857 अ मेयर म्यूटिनी और अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. चलो उसी को कर लेते हैं. समझे आप, ये ओपीएससी का पास्ट ईयर क्वेश्चन है. वर द disturbances of 1857 a mutiny or and this is a 20 marker question.
20 मार्क का क्वेश्चन मतलब कितने, 300 वर्ड। दैट मीन्स डिस्टर्ब में मतलब रिवोल्ट की बात हो रही है। पहली बात तो आप ये समझ लो, बात किस चीज की हो रही है गाइस, आपने पढ़ा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप पहले समझ लो, फिर व्हेन आई विल बी डीलिंग विद द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि 10th या 11th या इसके बाद से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। द पीपल हु हैव यू नो स्टडीड इट, आप एक बार देख लो। सो इट सेज रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब म्यूटिनी ऑफ सिपाही, सिपाहियों का विद्रोह था, या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक पैन इंडिया दिखाता है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के में तो सब लोग आ जाते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भाई पेजेंट्स आ जाते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या बोलते हैं, जमींदार आ जाते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या आ जाते हैं, तालुकदार आ जाते हैं, ट्राइबल्स आ जाते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। और सेक्शन यानी उसमें मतलब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यू नो इन 1857 द priest and the ulemas also played a very important role. When I'll be dealing with the revolt of 1857, I'll take care of this, don't worry. ठीक है, अब भाई देखो 1857 स्टार्ट कैसे हुआ था, कैसे स्टार्ट किया था, क्या नाम था उनका, सिपाही म्यूटिनी, मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। मंगल पांडे बैरकपुर का जो वो था, मंगल पांडे एक सिपाही था, मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूं भाई। मंगल पांडे एक सिपाही था जिसने जो पिस्टल थी, जो बंदूक थी, उसमें जो कार्ट्रिज था, मतलब गोली होती है उसकी, उसको चर्बी में मतलब जो होता है पिग की चर्बी होती है और गाय की चर्बी से उसको जो बुलेट है मतलब गोली है उसको उसमें ढकना पड़ता है, उसमें कवर करना पड़ता है। आप देखते होंगे आजकल के दिन में भी जो गोलियां हैं, जो आपने देखी नहीं होगी वैसे, बट जो बुलेट्स होती है, गोलियां होती है बंदूक की, उसको बंद करके रखते हैं, ताकि ये तो कोई कॉमन सेंस है कि अगर लोहे की होती है बाहर रखोगे तो उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, और जंग लग जाएगा तो क्या होगा, वो फंस जाएगी किसमें, मजल में, और गोली चलेगी नहीं। 1857 के टाइम पे वो जो गोली थी वो कवर में रखी जाती थी, और कवर किस चीज का था, चमड़ी का। किसका चमड़ा, पिग का या गाय का चमड़ा। तो पहले उसको बंदूक में डालने से पहले उसको तोड़ना पड़ता था, निकालना पड़ता था। और जो हिंदू थे या मुस्लिम्स थे उनके लिए, किसी के लिए पिग और हमारे लिए काउ was unholy, was considered to be holy, so we cannot just, so पांडे, मंगल पांडे ने कहा कि मैं तो नहीं करूंगा, और उसने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि क्या 1857 का कारण सिर्फ ये रिवोल्ट था या ऑल इंडिया का इंडिपेंडेंस था। सो हम ये कह सकते हैं कि एक कारण था कि बहुत सारे कारण थे। कोई भी इस चीज का एक कारण हो सकता है। भाई आप यहां बैठे हो, इसका एक कारण तो है नहीं, आपको जॉब चाहिए, यू नीड जॉब, यू नीड फेम, क्यों सर, यू नीड मनी। सो देयर इज नो सिंगल फैक्टर फॉर स्टडीज। किसी को पढ़ के अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, कोई मजबूरी में बैठा है, कोई नहीं। You understand what I'm trying to say? There are multiple factors for every one of you to be sitting here. The same way, 1857 revolt was not related to a single thing. अब इसको समझते हैं। पहले इसको कहते हैं, सॉरी, पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, मैंने आपको क्या बताया था, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एट बैरकपुर, और वैसे मेरठ में स्टार्ट हुआ था, when
sepoys revolted against English authorities. ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब मेन बॉडी में दो पार्ट्स है, मेन बॉडी में दो पार्ट्स है। तो कैन वी ऑल्सो डू दिस? एक तरफ है आप सिपॉय म्यूटिनी लिखो और एक तरफ आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखो, ठीक है? तो आपने क्या किया, कंपेयर कंट्रास्ट कर दिया। अब आप पहले लिखोगे वी विल टॉक अबाउट द सिपॉयज वर dissatisfied of salaries, exploitation, and racial discrimination. ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया कि सिपाही म्यूटिनी कैसे कह सकते हैं 1857 को। देन इस तरफ देखो, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर किस चीज को कहेंगे? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें तो एक से आदमी इन्वॉल्व नहीं है ना, इसमें तो पेजेंट्स भी इन्वॉल्व है, जमींदार भी इन्वॉल्व है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? व्हाट विल यू राइट है? देयर वर नो सिंगल फैक्टर, देयर वर फैक्टर्स लाइक लैंड रेवेन्यू। भाई टैक्सेस भी तो ले रहे हो आप। They were discrimination by Britishers. They were confiscation of properties of जमींदार्स। जमींदार्स की प्रॉपर्टी आपने ले ली। सो हर सेक्शन का किसानों का टैक्स, डिस्क्रिमिनेशन लोगों के लिए, जमींदारों के लिए उनकी प्रॉपर्टी छीन के किसी और को दे दी थी। ये आप धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है? लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा था तो इसलिए किसने रिपोर्ट किया? पेजेंट्स ने। डिस्क्रिमिनेशन होता था तो किसने रिवोल्ट किया? लोगों ने, कॉमन लोगों ने। जमींदारों की प्रॉपर्टी लेके अंग्रेजों ने ली तो किसने रिवोल्ट किया? जमींदारों ने। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों रिवोल्ट किया? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी अंग्रेजों ने हड़प ली थी। सो एवरीबडी हैड अ रीजन टू रिवोल्ट। सो कैन वी कॉल इट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो इसको दोनों को आपने लिख दिया, आप किसी कंक्लूजन में मत पहुंचो अभी। तो आपने सिपाहियों की रीजन दिखा दिए, आपने इनका रीजन दिखा दिया। अब इसको आप बढ़ा चढ़ा के, मतलब बढ़ा के लिख दो। उसमें मेक श्योर दैट यू राइट इन प्रॉपर स्पेसेस, स्पेस करके लिखो। लेकिन दिस इज द वे हाउ टू गो अबाउट इट। इसके बाद फिर कंक्लूड कर दो। ये एक तरीका है। मैंने आपको बॉक्सेस बताए, हेडिंग सब हेडिंग बताई और कंपैरेटिव एनालिसिस बता दिया। इस चीजों में कोई इज देयर एनी डाउट इन दिस? सो इन चीजों को आप और चीजों में भी यूज कर सकते हो। इज इट मेकिंग सेंस? There is a question saying explain various geographical and human factors for industrial location in Odisha.
हाँ, वेरी गुड। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ, बताइए हाउ कैन यू राइट द कंक्लूजन? हम्म हम्म You see, there is one freedom fighter named as Savarkar. He called this as the first war of independence. तो आप ऐसे भी कह सकते हो. So this was the first, though the sepoys triggered. सिपाही ने क्या किया? ट्रिगर किया. अब इसमें हुआ तो बहुत कुछ था. सिपाही ने अंग्रेजों के बच्चों को भी मार दिया था, और अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को जिस जिस जगह पे रिवोल्ट हुआ था उस जगह के रिवोल्ट करने वालों को गांव के बाहर लटका दिया था. ऐसा हुआ था. We call it the monopoly of what do you call it? Violence. There's a book called शेखर बंदोपाध्याय, आपने शायद देखी हो. तो उसमें लिखा हुआ है, यू नो, हिंदुस्तानी ने वायलेंस किया तो अंग्रेजों ने उससे डबल वायलेंस किया. हिंदुस्तानी ने अंग्रेजी बच्चों को मारा, अंग्रेजी औरतों को मारा, तो इंडियंस, ब्रिटिश लोगों ने भी इंडिया के बच्चों को, औरतों को मार दिया. मतलब किसी को देखा नहीं. You see, when people from कानपुर तात्या टोपे से वो रिस्पेक्ट वो लेके कि आप हम जा रहे हैं कहाँ? दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर. सिपाहियों ने कहा कि अब हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से हम अपने राजा को बैठाएंगे. अंग्रेजों से पहले कौन थे? मुगल्स थे, और मुगल्स का लास्ट राजा कौन था? बहादुर शाह जफर. अभी आप इस बात को समझ लो. तो अंग्रेज जो सिपाही थे जिन्होंने रिवोल्ट किया, वो दिल्ली की तरफ भागे. कानपुर से भागे दिल्ली की तरफ, और रास्ते में जो जो अंग्रेजों की बैरक्स आई उनको लूट लिया. क्यों? क्योंकि तोपखाने वही थे. ऑल द आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, मनी, जो जो एरिया आते थे उनको लूट देते थे इंडियन सोल्जर्स. अंग्रेजों ने क्या किया? कैम्बल ने और बाकी लोगों ने इनको रोका. सो यू नो, द स्टोरी इज नॉट व्हाइट एंड ब्लैक. द स्टोरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, दो सिपाहियों ने पहला, दैट वाज द फर्स्ट स्ट्रॉ, द फर्स्ट initiate and ignition, I would say, and there were whole lot of grievances which ultimately led to, and so it was a mix of a सिपाही mutiny and a war of independence. लेकिन कहते तो हम 1857 की क्रांति ही है, 1857 की सिपाही क्रांति और क्रांति. तो देयर आर मिक्स ऑफ बोथ. कि सिपाहियों ने भी रिवोल्ट किया, लेकिन इन लोगों को भी दिक्कतें थी तो इन्होंने भी. अब इसमें तो कहने को बहुत कुछ है, जैसे इट वाज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट. भाई क्या है, भाई जो किसान है उसने किसको लूट लिया? अपने वहां के जमींदार को लूट लिया, क्योंकि जमींदार अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था. जो ट्राइबल्स थे उन्होंने क्या किया? पुलिस थानों में आग लगा दी. उसके लिए अंग्रेज दिल्ली में नहीं है, उसके लिए वहीं पर है अंग्रेज. सो द इमीडिएट सिंबल ऑफ अथॉरिटी वी कॉल इट. अब भाई बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं क्या? वो तो एपीएससी के बाहर, ओपीएससी के बाहर से प्रोटेस्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि ओपीएससी इज द अथॉरिटी फॉर स्टेट. वो चीफ मिनिस्टर के घर में जाके तो नहीं बैठ जाते. अगर कभी पेपर डिले होता है तो बच्चे कहाँ जाते हैं? ओपीएससी के ऑफिस पे बाहर. क्यों? ओपीएससी तो पेपर बना रहे हैं ना. कंसर्न पार्टी कौन है? तो एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? पुलिस एक्सप्लॉइट कर रही है. तो मारना किसको है? पुलिस को मारना है. टैक्स कौन ले रहा है? जमींदार ले रहा है. तो मारना किसको? जमींदार. You understand what I'm trying to say? That's why, so both the parties had their concerns. You understand? अभी बताइए और कोई इशू है तो. Now, the question says that explain the various geographical and human factors.
ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे से फ्रेम हो सकता था, बट कोई बात नहीं. डिस्कस द लोकेशन एंड geographical and human factors for industrial location in Odisha. अब भाई क्वेश्चन इज अबाउट इंडस्ट्रियल लोकेशंस. अब भाई आपके पास इंडस्ट्री कौन कौन सी है? स्टील. स्टील इंडस्ट्री कहां पे लगेगी? जहां पर रॉ मटेरियल है. तो ज्योग्राफिकल एरियाज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड ह्यूमन फैक्टर्स, दे नीड लेबर आल्सो. भाई स्टील प्लांट में, राउरकेला में लेबर भी चाहिए. यू अंडरस्टैंड? सो यू कैन डिफरेंशिएट लाइक दिस. वन इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर द availability of resources. अब resources क्या है भाई? एग्जाम्पल आप अपने स्टेट के लिख दो. स्टेट क्या क्या लिखोगे आप? कहां पर मिलता है आयरन? सुंदरगढ़. तो मेरे कहने का मतलब है कि ये और इस पे एग्जाम्पल, डोंट मिस आउट एनी वन ऑफ दिस. ये भी लिखना है और एग्जाम्पल भी लिखना है. लेबर फैक्टर्स, भाई जहां पॉपुलेशन होगी लेबर तो वहीं मिलेगा ना. गांव में तो फैक्ट्री खोल के मिलेगा नहीं लेबर. और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे लाइन. आप राउरकेला के पास, हाँ जी बताइए. यस, वाटर. Understand? So इस तरह से you have to go about the answers. Now, one thing I would like to share here is that कई लोग कहते हैं मुझे ना क्रोनोलॉजी नहीं बन रही, मेरे आंसर्स की क्रोनोलॉजी नहीं बन रही. जैसे we call this life cycle approach. भाई कोई क्वेश्चन आ गया विमेन पे, विमेन का क्वेश्चन तो आता ही है. अब विमेन के क्वेश्चन में आप ये बताओ, जब चाइल्डहुड में बच्चे, लड़की का इशू क्या है? पैदा होते ही मैरिज कर देंगे? फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्चा, लड़की जब पैदा होती है पहला इशू क्या है? ये है. एडोलेसेंट में आती है तो चाइल्ड मैरिज. सही कहा आपने. चाइल्ड मैरिज और हेल्थ, सैनिटरी हेल्थ. अब वो बड़ी हुई, यंग में क्या आएगा? एजुकेशन, हेल्थ अगेन. सो कहने का मतलब क्या है, आप कोशिश करो कोई भी इशू है उसको बेसिक से उठाओ. बचपन में लड़की का प्रॉब्लम क्या होता है? बचपन में मार देते हैं लड़कियों को हिंदुस्तान में या किसी भी स्टेट में. जब 12 से 16 साल की उम्र होती है तो क्या होता है? कई लड़कियों की शादी होती है, सिचुएशंस अच्छी नहीं है ना, कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. और यंग में एजुकेशन का प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम है. डाउरी का प्रॉब्लम है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू. इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ लाइफ. भाई इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम बेसिक से कैसा है?
प्राइमरी सेक्टर में, खेती में क्या है, आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो, फिर उसके बाद उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो भाई, उसके बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, बहुत दिन तक रख रहे हो, उसके बाद माल बेच रहे हो, महंगा बेच रहे हो। तो यू अंडरस्टैंड ना व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ थिंग। तो किसी भी चीज में इसको चिपका देना। कहने का मतलब ये है, अगर आपको लग रहा हो कि मैं, अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, अब बचपन से स्टार्ट करो ना, लड़की का बचपन से प्रॉब्लम क्या क्या है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसको लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ लाइफ साइकिल अप्रोच। लिख लिया। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, आंसर राइटिंग में मैंने वही कहा कि मैप्स की बहुत जरूरत पड़ती है, हाउ टू यूज मैप्स। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं आपके ओडिशा के हिसाब से। चिल्का लेके शेर ओनली, चिल्का। और कौन कौन सी लेके यहाँ पर, ऋषिकुलिया। सो देखो भाई, ओडिशा हैज बीन, आपने ओडिशा का ज्योग्राफिकल रीजन है, so this is divided among the western belt, the Kalahandi and the areas, the this is a which place, fertile area, flood plain कह सकते हैं इसको, and this is the coastal region। तो आपने तीन भागों को तीन चीजों में डिवाइड कर दिया, आपने इसमें प्रॉब्लम्स दिखा दो, और बिकॉज इट्स अ रिच एरिया, बिकॉज इट इज नियर टू कोस्ट, व्हाई, सारे टेम्पल्स इस एरिया में है, सारा भुवनेश्वर इस एरिया में, कटक इस एरिया में है, सो दिस इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये एरिया एग्रीकल्चरल सरप्लस एरिया है, लेकिन फ्लड प्लेन भी है, फ्लड भी यहां पर आते हैं। और कौन कौन सी नदी है यहां पर, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, कैन यू डू दैट। और द वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट में क्या लिख सकते हो आप, के बी कालाहांडी, एंड दिस इज अ मार्जिनलाइज्ड रीजन, जिनकी प्रॉब्लम्स है क्योंकि ट्राइबल एरिया है, एक्सेसिबल नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो इज इट मेकिंग सेंस। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं चीजों को आंसर लिखने के लिए। नाउ अब यार मेरा मैप थोड़ा खराब है इंडिया का, तो थोड़ा सा देख लेना। तो आप इस एरिया को दिखाना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, वेस्टर्न घाट्स को दिखाना है तो ऐसे यूज कर सकते हो, यू नो एरियाज यू कैन डिमार्केट लाइक दिस, यू कैन टॉक अबाउट ओडिशा, द ज्योग्राफिकल लोकेशंस एंड स्टफ, है ना, you know how, what is the problems over here,
है ना, हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. दिस, एक चीज को समझाने के बहुत सारे तरीके हैं. मैप्स यूज कर सकते हो, मैंने आपको बॉक्सेस यूज करने का बताया, मैंने आपको बताया कि ए बी सी डी कैसे बढ़ना है, आपने मेरे को बताया ना मैंने कि क्रोनोलॉजी कैसे चलना है, बच्ची का प्रॉब्लम क्या है, हर हर सेक्टर का प्रॉब्लम है, हर सेक्टर में स्टेक होल्डर्स है. You understand why will people why are people investing in Bhubaneswar? Because there is accessibility, there is capital, there is, you know, educated people, human resources, golden coordinator, yes, and government is also pushing it. You understand? So हर चीज में लोग इन्वॉल्व है, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, तो एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, इस चीज का ध्यान रखना आंसर राइटिंग में. You understand what I'm trying to say? Lot of things you may understanding, lot of things may not be understood, but make sure you link one with the other as far as mains answer writing is concerned. Very good question. The first paper of the GS is history, geography, art and culture. The geography of Kalahandi and tribal belt, tribal is a cultural term and the area is geographical. So there is a relation between these two. This paper is related with the underdevelopment, which is the part of paper 3. This paper also has internal security. तो भाई नक्सल प्रोन बेल्ट तो यही वाली है, तो ये इकोनॉमी और ये पेज जुड़ गया. दिस इज बाय फर्स्ट पेपर. नाउ द tribal related laws are passed in, and this is a basic गवर्नेंस इश्यू. भाई गवर्नेंस इश्यू तो है ना ये. अब आप ट्राइबल बेल्ट पे जाके क्या करोगे? द इश्यू ऑफ एसडीएम इज एथिकल इश्यू. भाई यहां की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी है, एथिक्स से. भाई पॉलिसी और एथिक्स का तो रिलेशन है एक दूसरे का, GS4 से. You understand? That is the relation. मैं फिर से रिपीट करता हूं. मैंने आपको भुवनेश्वर का एग्जांपल दिया. भुवनेश्वर एक कल्चरल कैपिटल, कैपिटल ही नहीं कल्चरल कैपिटल हो गया. अब कल्चरल कैपिटल में लोग इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि कल्चरल से लोग आ रहे हैं, कैपिटल मिल रहा है, कल्चर, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं भुवनेश्वर में. आई हैव सीन IT पार्क्स, आई कम फ्रॉम आउटसाइड. व्हाई आर पीपल इन्वेस्टिंग इन भुवनेश्वर? ज्योग्राफिकल लोकेशन, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. सो पहला और तीसरा तो पेपर जुड़ गया. नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड दिस अ स्मार्ट सिटी. स्मार्ट सिटी तो गवर्नमेंट गवर्नेंस का ही पार्ट है ना भाई. स्मार्ट सिटी है ना आपकी. स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं? आपके यहां मेट्रो है, डेवलप हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि स्कोप है. यू अंडरस्टैंड? So that is how it is, you know, first paper, you know, people often ask me कि यार ऐसा कैसे आप बना देते हो. मैंने कहा ये पूरे तो यूपीएससी में तो ऐसे चलता है, पूरे यूपीएससी में ऐसे चलता है. ओपीएससी जब सिलेबस सेम है, बस यही तो फर्क है कि वहां 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 20 के आते हैं. ये तो डिफरेंस है. पेपर तो सेम ही है ना सारे. देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लास्ट टाइम पे. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में कैसे हुआ था सर? How was industrial revolution happening in Europe? आप मेंस के बैच में है कि आप मेरी क्लास में थे क्या? अच्छा सर समझ में आ रहा है कि मतलब क्या हो रहा है? ठीक, मुझे लग रहा है सर नए है ना, मुझे अंदाज नहीं आ रहा कि समझ में आ रहा है. You understand? So there was a question on industrial revolution. What is industrial revolution in Europe? हाँ?
कैसे क्लास में क्या बताया था मैंने? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फैक्ट्री मोड ऑफ प्रोडक्शन ना, मैंने बताया था, फ्रॉम अ फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, feudal mode of production to capitalistic mode of production. So where the units, production units are smaller and rural. भाई यहां पर तो गांव की औरतें हैं, गांव के लोग कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन यहां क्या कर रहे हैं? फैक्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है। कहां की? यूरोप की, जैसे मैनचेस्टर, यस, लिवरपूल, Leeds, very good, very good. Another niche. That's how Indian capital, Indian raw material is going to Europe and leading to the Industrial Revolution. This question has been asked. आप एक बार देखोगे, आपका OPSC का लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ। तो you see, there is a linkage. Don't think that this paper or that paper is not relevant. इस बार वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, फिर समझ लो, आप हंसते रह जाओगे फिर। You understand? भाई पूरी दुनिया को देख के मजे करो, लेकिन लास्ट में शीशे पेपर में तो देने आपने ही जाना है। क्यों सर? पेपर किसने देना सर? मुझे लगा कहीं मुझे देना हो। तो समझो बात की गहराई को, है ना, और लग जाओ अभी। और यू नो, इफ यू डू नॉट राइट, नुकसान तो आपका है। आई विल बी हेयर लेक्चरिंग यू, लिखोगे नहीं तो फिर 4-5 साल यही रह जाओगे, फिर वही चाल। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एंड आई हैव टोल्ड यू कि अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो इस पे फोकस करो, अगर राइटिंग अच्छी है तो जस्ट राइट पैराग्राफ्स। वी आर हियर, मेंटर्स आर हियर, शो योर कॉपीज अच्छे से, ये स्पेसिंग करो, थोड़े में ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं मत करो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, डिमेंशंस कवर करो, खत्म करो, जस्ट go to another question, just go to another question. I have also heard that in OPSC it's more into page भरना। पेज भी तो ऐसे भर सकते हो ना आप, ऐसे भी तो भर सकते हो, ऐसे भी तो मल्टी डिमेंशनल कवर कर सकते हो, पैराग्राफ कर लो, डब्बे बना लो, ये कर लो, एंड इट विल इंक्रीज योर मार्क्स। आप खुद देखोगे। आई हैव सीन देयर वाज अ गाय इन दिस, ही वाज सेइंग आई स्कोर्ड 160 170 मार्क्स आउट ऑफ 300। देयर वाज अ गाय, आई डोंट नो, ही यूज्ड टू कम, आई मेट हिम परसों ही मिला था मुझे, उसको थोड़ा इंटरव्यू में या ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स नहीं थे, ही गॉट 170 मार्क्स, और राइटिंग भी ठीक थी, और मतलब अच्छे से डिमेंशन भी कवर कर रहा था। सो प्लीज, चॉइस इज योर्स, मेक राइट चॉइस, ठीक है? चलो, बी एंड एयर, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो प्लीज। ना ना, चल जाएगा यार। देखो 300 कोई वो थोड़ी है वाटर टाइट कंपार्टमेंट, 300 का 320 हो जाएगा, 300 का 280 हो जाएगा, लेकिन आप 500 वर्ड लिख दोगे, फिर थोड़ा सा दिक्कत है। मिक्स कर लो, कहीं में ज्यादा लिख दो, कहीं में कम लिखो। आपको 20 से 20 सवाल तो नहीं आते होंगे, आई एम वेरी श्योर, आई हैव आल्सो गिवन मीन्स, तो मुझे पता है यहां करना और वहां करने में बहुत फर्क है भाई। यहां आप मजे लोगे, फिर वहां आपसे पेपर मजे लेगा। आप समझ रहे हो? वो मैंने देखा है, आई हैव सीन, बीन देयर डन दैट। आप समझ रहे हो? आपको लग रहा है हाँ मजा चल रहा है, फिर पेपर में आदमी फिर हंसी भी नहीं आती खुद को, खुद पर रोना आता है फिर, अरे यार शिट। So I used to make fun of, there was a senior mentor, I used to make बाबा, खुद कब बाबा बन गए पता नहीं चला। So ये होता है लाइफ, ठीक है? मेक श्योर आप खुद से, यू बी सिंसियर टू योरसेल्फ, दुनिया से, ठीक है? क्योंकि मुझे तो पता है ना मैं क्या हूं। You should know who you are. Is it this working for you or that is working for you? Choice is yours. Every person sitting here is different. She is different, he is different, he is different. So your strategy has to be like something like this, which fetches you marks. Select हो, झोला पकड़ो, चल दो। Understood?
ठीक है, विल स्टॉप हेयर। ठीक है, और किसी को सवाल पूछने तो हम लोग कर लेंगे आफ्टर द क्लास। थैंक यू सो मच।